Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Hina Naz, SS Physics at Divisional Public School and College, साहिवाल. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं. आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 में जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट टॉपिक है पावर, सेकंड एनर्जी, थर्ड काइंड्स ऑफ एनर्जी और लास्ट में हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. वर्क क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क कहलाता है और इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स in the direction of displacement is called work. It is denoted by W. Mathematically, work which is equal to F dot D, which is equal to Ft cos of theta, where F cos theta is the component of force in the direction of displacement, or theta is the angle between force and displacement. नेचर, वर्क की नेचर क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. हमने वर्क की डेफिनेशन में पढ़ा वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और चैप्टर नंबर 2 में हमने डॉट प्रोडक्ट में ये पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो वर्क is the dot product of two vector quantities force and displacement. So work is a scalar quantity. SI unit. The SI unit of work is Newton meter, known as joule and denoted by J. जूल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? When 1 Newton force acts on the body and the body covers a distance of 1 meter in the direction of force, then the work done said to be 1 joule. जब बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे और बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन में कवर करे, then the work done is 1 joule. One joule which is equal to 1 न्यूटन मीटर. हमने वर्क के बारे में पढ़ा. वर्क की डेफिनेशन से हमें ये तो पता चलता है कि बॉडी ने कितना वर्क परफॉर्म किया है, लेकिन इस डेफिनेशन से हमें ये नहीं पता चलता कि बॉडी ने कितना वर्क कितनी ड्यूरेशन में परफॉर्म किया है, which is the most important for practical application. How much work is done in 1 minute or how much work is done in 1 hour. इसके लिए हम लोग एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं which is called power. Power is the physical quantity that takes into consideration both work and time. So we can define as power is the measure of the rate at which work is being done, or the rate of doing work is called power. पावर हमें ये बताती है कि कितना वर्क कितने टाइम में परफॉर्म हुआ है.
Mathematically, power which is equal to work over time. Power is denoted by P. In symbols, the formula of power is P which is equal to W by T. P पावर को डिनोट कर रहा है, W वर्क को डिनोट कर रहा है, T टाइम को डिनोट कर रहा है. Greater power means a large amount of work is done in a short time. It means कि अगर बॉडी large amount of work करती है small interval of time में, then the body has larger power or greater power. Power is a scalar quantity. Because work is a scalar quantity, time is also a scalar quantity. So power is a scalar quantity. Average power. It is defined as the total work done divided by the total time taken. Mathematically, average power which is equal to total work done divided by total time. यहाँ पे P के साथ मैंने सबस्क्रिप्ट में AV लिखा हुआ है. AV एवरेज को डिनोट कर रहा है. PAV denotes the average power. So average power which is equal to del W by del T. Instantaneous power क्या होती है? Instantaneous का मतलब होता है at any instant of time. हम लोग पावर को किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं. Instantaneous power is defined as the limiting value of del W by del T as time del T approaches to 0. Mathematically, instantaneous power which is equal to limiting value of del W by del T as del T approaches to 0, where del W is the work done in short interval of time del T. Power and velocity. Sometimes we can express power in the form of a constant force F. This force acts on an object, then the object moves at constant velocity v. पावर को हम लोग कांस्टेंट फोर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. जब बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, when the propeller of a motorboat causes the water to exert a constant force F on the boat, therefore the boat moves with a constant velocity v. प्रोपेलर होता क्या है? इलेक्ट्रिक बोट्स में मोटर यूज होती है. मोटर के साथ नीचे पानी में एक पंखा लगा होता है. मोटर के वर्क डन की वजह से फैन रोटेट करता है. वो फैन वाटर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है. रिएक्शन में वाटर कांस्टेंट फोर्स बोट के ऊपर एक्सर्ट करती है और बोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है. सो द पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय इंस्टेंटेनियस पावर की बात हुई है तो हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला लिखेंगे P which is equal to limiting value of del W by del T as del T approaches to 0. We know that del W which is equal to F dot del T. ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. Putting values of del W in equation 1, we get power which is equal to limiting value of F dot del D by del T as del T approaches to 0. This is equation number 2. As we know that velocity which is equal to limiting value of del D by del T as del T approaches to 0. Velocity की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा पावर which is equal to force
इंटू वेलोसिटी। इस एक्सप्रेशन से हम लोग पावर को डिफाइन कर सकते हैं कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। And other definition of power, power can also be defined as the dot product or scalar product of force and velocity. Unit of power, हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा, पावर which is equal to work over time. Unit of work is joule. Unit of time is second. So the unit of power is joule per second or watt. watt को डिफाइन करते हैं, the SI unit of power is watt, defined as 1 joule of work done in 1 second. And other unit is horsepower. Horsepower को हम लोग HP से represent करेंगे. 1 horsepower which is equal to 746 watts. This unit is used to express the power of electric motors engine. हमारे घरों में हमने देखा होगा कि लाइट बल्ब यूज होते हैं. हम लोग 60 वॉट का बल्ब यूज करते हैं, 100 वॉट का बल्ब यूज करते हैं, 40 वॉट का लाइट बल्ब यूज करते हैं. 60 वॉट या 100 वॉट या 40 वॉट का मतलब क्या होता है? अगर सपोज हम लोग 60 वॉट का बल्ब यूज कर रहे हैं, उसका मतलब है कि लाइट बल्ब 60 जूल्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहा है 1 सेकेंड में. व्हाट इज वॉट सेकेंड? वॉट सेकेंड क्या है? हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा, पावर विच इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम. अगर हम लोग इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आता है वर्क विच इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. पावर का यूनिट है वॉट, टाइम का यूनिट है सेकंड. सो द यूनिट ऑफ वर्क इज वॉट सेकंड इन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स. अगर हम लोग पावर को वॉट की बजाय किलोवाट में, टाइम को सेकंड की बजाय 1 आवर में कैलकुलेट करें तो हमारे पास यूनिट आएगा किलोवाट आवर. इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किलोवाट आवर को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, 1 kilowatt hour is the work done in 1 hour by an agency whose power is 1 kilowatt. हमने पढ़ा किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ वर्क. हमने वर्क के आर्टिकल में पढ़ा जूल इज आल्सो द यूनिट ऑफ वर्क, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क. हम लोग किलोवाट आवर और जूल के दरमियान में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल? किलोवाट आवर को लेते हैं 1 किलोवाट आवर विच इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड. 1 किलोवाट 1000 वाट के इक्वल है, 1 आवर 3600 सेकेंड के इक्वल है. जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. तो 1 आवर which is equal to 60 multiplied by 60 seconds which is equal to 3600 second. अगले स्टेप में हम लोग वॉट की जगह पे जूल पर सेकेंड लिखेंगे, जैसा कि हमने वॉट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि 1 वॉट which is equal to 1 जूल पर सेकेंड. नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, 3600 से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. इसको हम लोग 10 पावर्स में लिखेंगे तो हमारे पास 1 किलोवाट विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल आएगा. हम लोग जानते हैं 10⁻6 विच इज इक्वल टू 1 मेगा.
तो 10⁶ की प्लेस पे हम लोग लिखेंगे मेगा। 1 किलोवाट आवर विच इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? Energy of a body is its capacity to do work, or it can also be defined as the ability of a body to do work is called energy. किसी बॉडी के काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है। अगर बॉडी में ज्यादा काम किया है, इट मीन्स बॉडी हैज मोर एनर्जी। अगर बॉडी ने कम काम किया है, इट मीन्स बॉडी हैज लेस एनर्जी। An object which can do more work is said to have more energy and vice versa. SI unit of energy. Energy is capacity of doing work. Therefore, the SI unit of energy is same as of work. One joule of energy is required to do 1 joule of work. मैंने यहाँ पे 1 जूल क्यों कहा? हमने कहा यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज ऑफ वर्क। तो वर्क का यूनिट क्या है? जूल है। इट मीन्स एनर्जी का यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया। अगर बॉडी में 1 जूल ऑफ एनर्जी है तो उसका मतलब ये है कि बॉडी 1 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म कर सकती है। Thus the SI unit of energy is joule and is denoted by J. Larger unit of energy is kilojoule and is denoted by kJ. 1 kilojoule which is equal to 1000 joule. Okay, 1 kilo which is equal to 1000. Kinds of energy. हमने previous classes में भी पढ़ा है there are many kinds of energy. Some of these are mechanical energy, thermal energy, electrical energy, sound energy, light energy, न्यूक्लियर एनर्जी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल्स, a moving car possesses mechanical energy due to its motion. A drawn bow possesses mechanical energy due to its stretched position. Types of mechanical energy. हमने मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन में पढ़ा द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन ऑफ ए बॉडी। मोशन और पोजीशन, 2 पॉइंट्स पढ़े। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब हम लोग वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी मूव कर रही है, इट मीन्स बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सम ऑफ दीज आर a moving car has kinetic energy. Water flowing in a river. An object rolling down a hill. It also has kinetic energy. Releasing an arrow from the bow possesses kinetic energy. Types of kinetic energy on the basis of types of motion. हमने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन में पढ़ा था एनर्जी ड्यू टू मोशन। अगर हम लोग मोशन की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन की बेसिस पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करेंगे।
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? Translational kinetic energy is the kinetic energy an object has due to its motion in a straight line from one place to another place. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है, then the body has kinetic energy. Examples: motion of bullet fired from a gun, driving a car on the road. These are the examples of translational kinetic energy. Formula of translational kinetic energy. Translational kinetic energy, which is equal to half mv square, where m mass of an object, v velocity of an object. नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन अराउंड एन एक्सिस। अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है या रोटेट करती है, then the body has rotational kinetic energy. It is also called as angular kinetic energy. Example: a planet rotating around the sun. This is the example of rotational kinetic energy. The blades of the rotating fan have rotational kinetic energy due to its rotational motion. Formula of rotational kinetic energy. Rotational kinetic energy is equal to half I omega square, where I is moment of inertia around the axis of rotation, omega is angular velocity. नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। Vibrational kinetic energy is the kinetic energy an object has due to its vibrational motion. बॉडी की वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल्स: vibrating of a drum when it is hit by a drumstick. This is the example of vibrational kinetic energy. Cell phone that vibrates when it is ringing. This is the example of vibrational kinetic energy. नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? The energy possessed by a body because of its position in a force field, for example gravitational field, or because of its constant state. Examples of potential energy. There are a lot of examples of potential energy. Some of these are stretching a rubber band, water at the top of a waterfall, yo-yo inhaled in your hand, drawing a bow. These are the examples of potential energy. Types of potential energy. Number 1, gravitational potential energy. Second, elastic potential energy. हम लोग इन दोनों टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? Gravitational potential energy is energy an object possesses because of its position in a gravitational field. This is called
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग कंसिडर करते हैं एक बॉडी का मास क्या है, m है। बॉडी अर्थ से सर्टेन हाइट पे है। बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की। बॉडी को हम लोग अर्थ लेवल से सर्टेन हाइट पे लेके गए। बॉडी के ऊपर हमने वर्क परफॉर्म किया। ये वर्क बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, सो बॉडी हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी अर्थ से सर्टेन डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को हम लोग h से डिनोट करेंगे। हमने बॉडी की पोजीशन को अर्थ लेवल से मेजर किया। हमने रेफरेंस लेवल को सरफेस ऑफ अर्थ लिया। हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे कि सरफेस ऑफ अर्थ इज एट 0 रेफरेंस लेवल where the potential energy is 0. The potential energy due to gravitational field near the surface of Earth at a height h is given by the formula potential energy which is equal to work. Gravitational field में work, force और displacement के इक्वल है। Displacement को हमने h से डिनोट किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं विच इज इक्वल टू mg, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया mgh। m क्या है, मास ऑफ ए बॉडी है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, h हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। रेफरेंस लेवल फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करते हुए हमने एक रेफरेंस लेवल चूज करना है जहां पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसिडर करना है। A location where the gravitational potential energy is 0 must be chosen for each problem. Choose a convenient location for the 0 reference height. In present case, this reference level is surface of Earth. It is position of 0 potential energy. In some cases, we can choose a point at infinity from Earth. This point is taken as 0 reference level. Examples of gravitational potential energy. River water at the top of a waterfall. A child at the top of a slide. Child or surface a certain height पे है, so it has gravitational potential energy. A yo-yo before it is released, it also has gravitational potential energy. Elastic potential energy. Elastic potential energy is potential energy stored as a result of deformation of an elastic object by work performed upon it. अगर हम लोग किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं और उस वर्क के परफॉर्म करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड होती है, देन दिस वर्क इज stored in the form of elastic potential energy. जब हम लोग बॉडी को कंप्रेस्ड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे या किसी भी मैनर में बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड होगी, इट मीन्स कि हमने बॉडी के ऊपर वर्क किया। वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर हो गया। Examples of elastic potential energy. An archer's stretched bow. This is the example of elastic potential energy. Compressed or stretched spring.
अगर हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करते हैं, इट मींस कि हमने स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड की है, स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया है। वो वर्क स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। A stretched rubber band has elastic potential energy. Formula of elastic potential energy. Elastic potential energy which is equal to half kx square, where k is equal to spring constant and x is equal to displacement. इसको हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, हमने वर्क के बारे में पढ़ा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, फिर हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग वर्क और एनर्जी का रिलेशन डिस्क्राइब करवाएंगे। When we do work on a body, this work always increases its energy. जब हम लोग बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो वो वर्क बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। A body of mass m is moving with velocity vi. A force F act on it through a distance t. It increases its velocity to vf. एक बॉडी है जो vi वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एक फोर्स F बॉडी के ऊपर एक्ट करती है। फोर्स के एक्ट करने की वजह से बॉडी ने d डिस्टेंस कवर की है और बॉडी की वेलोसिटी vi से vf हो गई है। हमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, इट मींस हमने बॉडी के ऊपर वर्क किया। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन 2ad which is equal to vf square minus vi square, इस इक्वेशन से हम लोग d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। d which is equal to 1/2a into vf square minus vi square. This is equation number 1. From second law of motion, force which is equal to ma, m is the mass of a body, a is acceleration of a body. This is equation number 2. हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा कुछ इस तरह से। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, f को d से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/2a इंटू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र को एम ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारे पास रिजल्ट आएगा हाफ एम इंटू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा एफ टी विच इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्र माइनस हाफ एम वी आई स्क्र। जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्र के इक्वल है। अगर हम लोग वेलोसिटी को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के टर्म में लिखें तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग यूज करेंगे वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग यूज करेंगे वी आई। यहाँ पे हाफ एम वी एफ स्क्र फाइनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ एम वी आई स्क्र इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। एफ डॉट डी वर्क के इक्वल है, तो वर्क विच इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इट मीन्स कि अगर हम लोग बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो दिस वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। Similarly, if a body is raised up from the Earth's surface, the work done
changes the gravitational potential energy. Or if a spring is compressed, the work done on it equals the increase in its elastic potential energy. हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम देखा होगा जब हम लोग स्प्रिंग के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाता है. हमने स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया. दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ elastic potential energy. So we can say that work done on the body is equal to change in its energy. आइए अब कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. The rate of doing work is called power. SI unit of power is watt. The capacity to do work is called energy. The different forms of energy are mechanical energy, heat energy, electrical energy, light energy, and sound energy. The energy possessed by a body due to its motion or position is called mechanical energy. Potential energy and kinetic energy are the types of mechanical energy. Kinetic energy is the energy possessed by a moving body due to its motion. Potential energy is the energy possessed by a body due to its position. Gravitational potential energy and elastic potential energy are the types of potential energy. Work done on the body equals change in its kinetic energy. This is known as work energy principle. Thank you.